Hello everyone. In today's lecture we are going to continue with chapter number 4 of our economics book, the globalization and the Indian economy. Here we will study what is globalization. Students, if we look in the past 2 or 3 decades, आज से 20-30 साल पहले की बात करें तो हम क्या देखेंगे कि more and more MNCs they have been looking for locations around the world which would be cheap for their production. कि MNCs आइडेंटिफाई कर रही हैं वर्ल्ड की डेवलपिंग कंट्रीज़ में उन प्लेसेस को जहाँ पर उनको वेरी लेस कॉस्ट में प्रोडक्शन अवेलेबल हो सके. सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय MNCs इन द डिफरेंट कंट्रीज हैज़ बिन राइजिंग. और साथ के साथ क्या हो रहा है कि फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, बट अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस फॉरेन ट्रेड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय MNCs. वंस अगेन हम यहाँ पे रिकॉल करेंगे द एग्जाम्पल ऑफ फोर्ड मोटर्स, द वन हु वर manufacturing the cars and the jeeps. Ford Motors, they have set up their production unit in India along with the collaboration of the local company Mahindra and Mahindra, and they were producing the cars not only for the Indian market but also to export cars to other developing countries, and export car components for its many factories all over the world, all around the world were set up. So MNCs जो हैं they are involved in substantial trade in goods and also in services. Students, the result of the greater foreign investment, the money which is spent by the MNCs for buying the land, for buying the buildings or the machines. So this foreign investment and greater foreign trade has helped a lot to interlink the production and markets across the globe. So this interlinking and interconnection between the two countries or more than two countries is known as globalizations. And in the process of globalization, MNCs are playing their major role. More and more goods and services, investment and technology, they are moving between the countries. And here we can say that the world is coming closer and closer. Besides the movement of goods and services, investment and technology, there is also one another way in which the countries can be connected. And this is the movement of people between the countries. Now the question is, why do people move from one country to another? So there are many reasons. They move in search of better income, better jobs, or better education. In the past few decades, there has not been much increase in the movement of people between the countries due to various restrictions. In the next topic, we are going to study that what are the various factors that have enabled globalization. So the number one is technology. As we have studied earlier also that these MNCs, they are having a lot of money. So it is very easy for them to set up the production units in the different parts of the world, especially in the developing countries. Secondly, these MNCs, they bring technology with them. So local companies join hands with them, which can help them to enhance their income. So technology has been a major factor that had stimulated the process of globalization. Over the past 50 years, we have seen many improvements in the transportation technology in the form of land, air, and water transport. And this has led to much faster delivery of goods across long distances, and that also at the lower cost. Here in this picture, you can see the containers. These containers are used for the transportation of goods. Goods
they are placed in the containers and then they can be loaded in the ships, railways, planes and trucks. These containers, they have led to a huge reduction in port handling cost, and they have also increased the speed with which exports can reach to the market. So इसका क्या रिजल्ट निकला कि नाउ द गुड्स आर इन द रीच ऑफ द पीपल, और जो कॉस्ट है एयर ट्रांसपोर्ट की वो भी बहुत ज़्यादा लेस हो गई है, जिसके कारण हम ईज़िली अपने गुड्स को वन कंट्री टू अनदर कंट्री ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। सेकेंड फैक्टर जो ग्लोबलाइजेशन में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, दैट इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आजकल के अगर हम टाइम में देखें तो टेक्नोलॉजी इन द एरियाज ऑफ टेली कम्युनिकेशन, स्पेशली कंप्यूटर्स, इंटरनेट कैन बी विटनेस। टेली कम्युनिकेशन में हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं इन द फॉर्म ऑफ टेलीग्राफ, टेलीफोन विच इंक्लूड्स मोबाइल फोन्स, फैक्स, and these are one of the important source which can be used to contact one another around the world and to get the information and to communicate from remote areas। और ये सारा कैसे पॉसिबल हो रहा है? It is facilitated by the satellite communication devices। अब आप देख रहे हैं हर फील्ड में कंप्यूटर्स जो हैं वो एंटर हो चुके हैं। They are in great use, and how are they run? They are run with the help of electricity। अब ये कंप्यूटर्स, ये इंटरनेट का जो वर्ल्ड है, ये बहुत ही ज़्यादा एक अमेजिंग फैक्टर है हमारे लिए, थ्रू विच वी कैन ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, जिससे हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, एंड इवन वी कैन शेयर द इंफॉर्मेशन। ऑलमोस्ट एनीथिंग यू वांट टू नो you can easily know within few seconds। इंटरनेट की मदद से हम ईमेल भी सेंड कर सकते हैं, and we can use the voice mail all over the world। okay, so this is also done at a very negligible cost। बहुत ही कम कीमत के ऊपर हमें easily ईमेल मिल जाती है। ईमेल अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, हम दूसरों की से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। सो इसके ऊपर जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। बट इन दिस पिक्चर यू कैन सी द पर्सन, ही इज़ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द डेस्कटॉप, एंड ये सारे इंटरनेट वगैरह को रन करने के लिए किसकी ज़रूरत है? इलेक्ट्रिसिटी की। तो कैप्शन बॉक्स में क्या लिख रखा है? बट वेयर इज़ द इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है? सो यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होना पड़ेगा, ठोस होना पड़ेगा, बिकॉज गवर्नमेंट अगर इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी रेगुलर बेसिस के ऊपर अवेलेबल कराएगी तो एमएनसीज़ के लिए उन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी होगा। एमएनसीज़ के पास एसेट्स हैं, लेकिन साथ के साथ उनको गवर्नमेंट की भी असिस्टेंस चाहिए, जिसमें वो अपने इस वर्क को अच्छे लेवल के ऊपर रन कर सकें। एक और एग्जांपल पढ़ते हैं हम यहाँ पे कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज इन अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज़ को स्प्रेड करने में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सो लेट्स सी हाउ आईटी इज़ यूज्ड इन ग्लोबलाइजेशन। एक न्यूज़ मैगजीन्स है जो कि पब्लिश हो रही है लंदन के रीडर्स के लिए, बट उसकी डिज़ाइनिंग और उसकी प्रिंटिंग का हुई है दिल्ली में। अब क्या प्रिंट करना है, कैसे डिज़ाइन करना है, ये सारा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू दिल्ली के ऑफ़िस में उसको भेजा गया, और दिल्ली के डिज़ाइनर्स ने दिल्ली के ऑफ़िस में इन ऑर्डर्स को बनाना शुरू किया, किस तरीके से मैगज़ीन डिज़ाइन होगी, और डिज़ाइनिंग करके उसका एक सैम्पल लंदन के ऑफ़िस में उन्होंने सेंड किया। अब ये कैसे सेंड किया जा रहा है? विद द हेल्प ऑफ द टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। डिज़ाइनिंग कंप्यूटर पे हो रही है, डिज़ाइनिंग होने के बाद प्रिंटिंग होगी, एंड लेटर ऑन जब मैगज़ीन्स रेडी हो जाएंगी
so they are to be sent by the air transport to London. अब क्वेश्चन है कि पेमेंट कैसे होगी? पेमेंट ऑफ मनी फॉर डिज़ाइनिंग, पेमेंट ऑफ मनी फॉर प्रिंटिंग. So this all will be done from a bank in London to a bank in Delhi. लंदन से पेमेंट आएगी दिल्ली के बैंक में. एंड ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ ई बैंकिंग. अभी प्रीवियस हमने पढ़ा कि हम ईमेल सेंड कर सकते हैं, हम वॉइस में टॉक कर सकते हैं, वॉइस कॉल्स कर सकते हैं, एंड इवन पेमेंट्स कैन बी ऑल्सो डन थ्रू द इंटरनेट विच इज़ कॉल्ड एज द ई बैंकिंग. नेक्स्ट आता है हमारा लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. एक बार फिर से हम चाइना के टॉयज़ वाले एग्जाम्पल पर जाते हैं. एग्जाम्पल ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ चाइनीज़ टॉयज़ इन इंडिया. चाइनीज़ टॉयज़ जो इंडिया में बहुत ज़्यादा सेल किए जा रहे हैं, रीज़न क्या है उसके पीछे? उनकी क्वालिटी, उनकी डिज़ाइनिंग और उनका ट्रेंडी. अब चाइनीज़ टॉयज़ जब इंडिया में आए तो इसका सबसे बड़ा सेटबैक जो धक्का लगा वो किसको लगा? टू दी इंडियन टॉय मार्केट, बिकॉज उनके कस्टमर्स का जो नंबर था वो फॉल हो गया. अब क्या है कि इंडियन टॉय मार्केट में इन प्रोड्यूसर्स को सेव करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है? सो क्वेश्चन आता है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज़ टॉयज़ के ऊपर टैक्स लगा दे तो क्या होगा? तो होगा ये स्टूडेंट्स कि दोज हु विश टू इम्पोर्ट दीज टॉयज़ they would have to pay a tax on this, and those who can't pay this tax obviously they will face towards the Indian toy market. अब जब टैक्स लगना शुरू हो जाएगा चाइनीज़ टॉयज़ के ऊपर तो बायर्स जो हैं, जो ख़रीदार हैं, दे हैव टू पे अ हायर प्राइस ऑन द इम्पोर्टेड टॉयज़. तो चाइनीज़ टॉयज़ की कॉस्ट उतनी ज़्यादा चीप नहीं रहने वाली, सस्ती नहीं रहने वाली इंडियन मार्केट में जब उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा. तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? जब कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी तो बायर्स का नंबर भी लेस हो जाएगा. एंड दिस विल help the Indian toy makers to prosperous. So they will find a place in the Indian toy market to sell their goods, to sell the toys, and there will be a fall in the Chinese toy market. Next है, जब हम टैक्स लगाते हैं इंपोर्ट्स पे तो उसको हम बोलते हैं ट्रेड बैरियर. So what is a trade barrier? It is some kind of restriction that has been set up by the government to save the producers of their own country. So governments can use trade barriers to increase or decrease the foreign trade. ये गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो ट्रेड बैरियर्स लगा सकती है एंड वो टू डिसाइड what kind of goods and how much of each should come into the country. कौन सा सामान कंट्री में आएगा, किस तरीके का आएगा और कितना आएगा, ये डिसाइड करना गवर्नमेंट का काम है. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.